who were always there with me, especially Dr. Uzma and Sana, जिन्होंने जो है मेरे parents की take care में help किया while I was very busy studying for my exams and were always there to guide me practically when I had forgotten about my technical knowledge. And of course, Zara, Samar, my traveling friends, Mara, she's my cousin. I don't know if you guys know or not, but she made the journey of my MBBS very smooth and easy for me. So उसको मैं भूल नहीं सकती हूँ other many friends. बात actually ये है कि जो continuation में करूँगी यहाँ पर हुई है कि successful people they know that there is no such thing as a self-made man. आपकी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोग का हाथ होता है, सिर्फ एक ही होना चाहिए और वो आपके पास वो विजन वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. Not only your parents, your teachers and everyone else. आपके घर में काम करने वाली हाउस हेल्प who make your life easy, your cooks, your drivers who bring you to the college, all of them have contribution in making you, shaping you who you are today. And जब आप अपने अंदर से जो है वो मैं निकालेंगे और आप ये चीज़ देखना शुरू करेंगे कि आपकी सक्सेस से इन सब लोगों का हाथ है, उस वक्त जो है वो आपको रियलाइज होगा कि देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ-मेड मैन. आपके पीछे सब लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से जो आपके पर हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है. एंड ये वो चीज़ें which is going to take us towards our next point that you have to reduce the मैं in your own self. हमेशा ये चीज़ जो है वो रखती है कि डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है. प्लीज बातें करना बंद कर दें, ये चीज़ ना बोरिंग नहीं है. ठीक है. एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू US side only. It is basically related to the ethics, morality and everything else that you face in daily life as well. Just bear with me for 10 minutes. I'm very hopeful and positive कि आप इससे कुछ अच्छा लेके जाएंगे. Because it's not that for not just US journey and everything. मुज़फ़्फ़र ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन इसके ऊपर दी है. But I would just say ये चीज़ें वो चीज़ें हैं बेशक आप US साइड पे UK साइड पे कहीं पे भी हैं थ्रू लाइफ आपको काम आएंगे. ओके. ऑलराइट. सो नेक्स्ट मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ. अपने अंदर से जो है वो मैं निकालनी है, ग्राउंडेड रहना है और फिर आपने वो चीज़ देखनी है कि आपके सामने जो शख्स खड़ा है जो आपसे सक्सेसफुल है उससे आपने हेल्प लेनी. This is the universal truth that he who does not ask will not get. You have to approach the people who are more successful than you कि हमें उस बात के बारे में गाइड करें, हमें बताएं. यहाँ पे you have to keep your shyness aside. We were very shy at our times. And even हम scared भी थे अपने seniors तक, अपने mentors तक, teachers तक पहुँचते हुए. But now the times have changed. आपके teachers इतने kind of cooperative हैं कि ना सिर्फ academically अगर आप उनके पास अपने personal problems के लिए भी जाएं so they will be there for you. We have such teachers. वही teachers अभी हैं जो हमारे पास थे. And trust me, if you go and ask for help, then you will get help and you will reach to your successful point much faster as compared to people who do not ask for help. Okay? So next point है जब आपने किसी को अप्रोच करना है, you should know how to approach someone. This is very important trait of someone who is successful and someone who is going to be successful. I would say किसी को अप्रोच करना, प्रोफेशनली अप्रोच करना किस कदर इम्पोर्टेंट है ये स्टूडेंट लाइफ में हमें अंदाजा नहीं होता. और ये जब तक आपको कोई बताएगा नहीं आपको तब तक भी पता नहीं चलेगा. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी से डांट खानी है, क्रिटिसिज्म खाना है फिर ही आपको पता चलेगा. We are here to tell you that the people who are here with you that how to approach someone. सबसे पहले ये है कि जैसे मुज़फ़्फ़र ने प्रेजेंटेशन में बात की थी, you have to be to the point. लोगों को reach out करें instead of reaching them out on their personal platforms like Facebook वगैरह में. इस पे reach out नहीं करना. ठीक है. WhatsApp personal messages. Use Facebook groups for that. Use WhatsApp groups for that. Most important सबसे बड़ा सोचना है वो ये है कि email are mostly public and usually people respond to their emails. email करें, उनको professionally brief करें, to the point बात करें, at the end express your gratitude and then just wait for the response. If you don't get any response, just send a polite reminder. But आप वो चिपकू वाला जो काम है वो नहीं कर सकते. ठीक है. Because you have to be considerate of the fact that
It's not like that. ठीक है? So everyone is busy. हर एक की अपनी struggles होती हैं. You have to be respectful for the other person. And you can send a gentle reminder if you don't get your response in time. And if you get a refusal कि जी हमारे पास time नहीं है, हम आपको नहीं बता सकते, accept that refusal with dignity and move on. Trust me, there are people who are there to help you, who are willing to help you. More often than not, people will help you. जो लोग पहुंच चुके होते हैं ना, वो दूसरों की सक्सेस पसंद करते हैं. जो नहीं पहुंचे होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, उनके साथ कॉम्पिटिशन होता है. लेकिन जब कोई बंदा एक टारगेट पे पहुंच गया, इसने कुछ अचीव कर लिया, he or she wants you to flourish, wants you to be with him. सबसे अहम बात प्रेजेंटेशन की, यूनिवर्सल ट्रूथ है उर्दू में, बात दरबान सी पेड़ सी. आप रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. बात सिर्फ ये नहीं होती है कि जिस शख्स के साथ आप काम कर रहे हैं, जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके वो काम करेगा. आपके वैसे दूसरे तरीके से अल्लाह ताला के आसान कर देता है. यू नेवर नो आपका रास्ता किस तरीके से आसान. सो जस्ट टू समराइज द सक्सेसफुल पीपल, यू नो, हार्ड वर्क, टीम वर्क, डेडिकेशन, परसिवरेंस, these are clear things जो success के लिए जरूरी होती हैं. But some of the unconventional things which no one talks about is that बड़े ओहदे पे पहुंचे वाले लोग humble होते हैं, polite होते हैं, they are kind, they share things with others, they do not stop their knowledge, they make things easy for us. So this is the end of the conventional presentation topic. ये थोड़ा सा ब्रॉडनेस टॉपिक रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास 2 सरप्राइजेस हैं. सो जो लोग अभी तक जाग रहे हैं उनको थोड़ी सी खुशी होती है चीज़ सुन के कि आई हैव 2 सरप्राइजेस फॉर यू. वन इज फॉर ऑल द 5 years, including pre-clinical and clinical, and the second one is mainly focused on the clinical years. तो अब मुझे ये बताएं आप लोग कि अगर मैं आपको कोई ऐसी जो है चीज़ ऐसा मीडियम बताऊँ कि जिससे एफर्टलेस तरीके से जो है वो आपको इतनी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज, क्वेश्चंस, पैथोलॉजी के पैथोलॉजिक साइंस, फार्माकोलॉजी के मैकेनिज्म एक्शंस, ये सब चीज़ें जब आपको एफर्टलेसली याद हो जाए तो आप सबको कैसा लगेगा? ओके, सो आप सुनना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको एफर्टलेसली जो है वो कुछ चीज़ें याद करवाएगी? I don't know whether or not. Okay, so my first surprise is Anki. अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि does anyone of you here know what Anki is? Just raise your hands, I won't ask. Okay, very good. चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि there are people who know, but this is especially for those who don't know. क्योंकि मैं तो ये भी सोच रही थी कि अब काफ़ी टाइम हो गया तो ज़्यादा लोगों को पता होगा, but I am surprised to see and I am happy कि मेरी वजह से नई चीज़ जो है आप लोगों को सीखने को मिलेगी. So these are basically flashcards. ये जो medium of learning है, this is not only for medical students or anyone. ये नॉन मेडिकोस, FSC, छोटे बच्चे, किसी और करियर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हुए सब लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. इसका ये बेनिफिट है. हमें इस चीज़ का पता इस तरह से चला क्योंकि ऑब्वियसली US स्टूडेंट्स यूज दिस अ लॉट. वो खाना खा रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, फ़ोन के ऊपर जो है वो साथ अंकी चल रही होती है और उनको जो है वो रेगुलर लेक्चर्स सुनने की या घर में बैठ के किताबों को रट्टा लगाने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती. अंकी डज द होमवर्क फॉर देम. सो मैं छोटी से आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी. आई नो दिस विल टेक टाइम, लेकिन ये ज़रूरी है बिकॉज छोटी सी आपको डिटेल्स के बारे में बताऊँगी. देन यू विल डू योर होमवर्क इन दिस and you will realize how important it is during your academics. So Anki is an app जिसकी पिक्चर आपको दिखाई. Okay, so Anki basically क्या है?